Welcome folks. So this is the continuation of our earlier video of directive principles of state policy, and in this video we are going to discuss about the articles and the pointers that we had left in the earlier video. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC digital mentor. So I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series in which we discuss about each chapter in great depth. So let's get started off directly with the topic of today, that is DPSP, and cover all the topic that we had left in the earlier video. So let's get started. So guys, in the earlier video, firstly we discussed about, let's quickly summarize whatever we had read in earlier video. So firstly we understand कि DPSP पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में, और we had borrowed from Irish constitution that themselves had borrowed from Spanish constitution, and then we discussed about the features, and then we discussed about basic classification through which we put up the DPSPs, जिसमें हम socialist, हमने गांधीयन, and then the third one was liberal intellectual. तो ये हमने classification discuss की थी. अब हम देखते हैं वो कौन से डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू कौन से हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट डीपीएसपीज जो है वो इंक्लूड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो सबसे पहले बात आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इंट्रोड्यूस्ड 4 न्यू डीपीएसपीज. सो आई एम सो सॉरी दैट आई हैड रिटन डीपी. Yeah, it's DPSPs. So that were Article 39, 39A, 43A, 48A. So let's get back to our BR Act and understand what are these articles. So let's go back. So firstly, Article 39 that we had already discussed in earlier video, in which we said कि जो wages वगैरह है वो equivalent होने चाहिए, और वो हमें पता है wages act है, right? Then the 39A. So let's go there. That says the state shall secure the operation of legal system, promote justice on the basis of equal opportunity, and shall in particular provide free legal aid by suitable legislature or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. That comes under, like, अगर हम लोग ये बोले तो free legal aid जो है, जो अगर हम लोग अपनी जुडिशरी के अकॉर्डिंगली देखें तो आपको पता होगा ये प्रोविजन इम्प्लीमेंटेबल है राइट नाउ ऑल्सो. सो दैट शोज कि जो डीपीएसपीज हैं सिर्फ वो वर्ड्स की फॉर्म में, ऑल्दो दे आर नॉन जस्टिफाइबल, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखती है, क्योंकि हम जितने डीपीएसपीज देख रहे हैं हम साथ के साथ देख रहे हैं कि उसका रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो दिस वॉज आर्टिकल 39A. तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आर्टिकल 39, देन कम्स 39A, उसके बाद आता है 43A. सो लेट्स गो देयर. सो दैट कम्स देयर. Yeah, I think now you can see that. Yes, so that says the state shall take steps to secure by suitable legislature or in any other way to secure participation of workers. जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज की उसमें भी जो वर्कर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. That was 43A, and then come 48A. So let's go there. Here it is. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of country. अब आप बोलोगे कि नहीं पॉल्यूशन है, ये है, वो है, सब कुछ है, बट देखो फिर भी जो गवर्नमेंट है वो अपने एंड पे काम करती है, बट एनी हाउ बहुत सारे इश्यूज हैं, और जितना हमें इजी लगता है यहाँ पे बैठ के एज अ मतलब वी थिंक लाइक आफ्टर रीडिंग सम बुक्स वी बिकम थिंक टैंक, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एक्चुअल इशू दैट आर ओवर देयर जो कि टैकल करना इतना भी ईजी नहीं होता है. सो दैट्स वाई व्हेन दे लाइक जब हम लोग इस साइड बैठ के बोल रहे हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो हम लोग शायद बहुत कई बार थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, बट वंस यू गेट इनटू सर्च बेसिस तो आप खुद से फिर वही बातें बोलते हो जो गवर्नमेंट बोलती है, राइट. सो दीज वर द आर्टिकल्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डीपीएसपी पार्ट. अब आपको डिसाइड करना है ये वो तीनों में से किस वाले हम लोग बोलेंगे कि कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में आता है. सोशलिस्ट में कौन सा आता है, देन गांधीयन में कौन सा आता है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन सा आता है. दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर डीपीएसपी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. नाउ like I hope this is clear for you. Now let's go back to the 44th Amendment Act of 1978. बेसिकली मैंने क्या किया है, या मैंने क्या, ये बुक में भी ऐसे ही था कि हम लोगों ने क्या किया है कि हमने जो बेसिक डीपीएसपी से वो डिस्कस किए, फिर हमने देखा कि जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुई है उसके अकॉर्डिंगली कितने डीपीएसपीज और ऐड किए गए हैं. अभी हमने देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली 4 और न्यू डीपीएसपीज इंक्लूड किए. फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक और नया जो डीपीएसपी था वो इंक्लूड किया गया. दैट वाज आर्टिकल 38 दैट सेज स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है.
तो ये इसलिए देखो, अब ये सारे के सारे जो हम डिफरेंट डिफरेंट डीपीएसपीज देख रहे हैं, ये लेटर और इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, तो दैट शोज कि डीपीएसपी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर नॉन एनफोर्सेबल है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तो बाद में अमेंडमेंट्स कर करके उसमें डीपीएसपीज में और नए डीपीएसपीज क्यों इंक्लूड हो रहे हैं। सो दैट इटसेल्फ शोज कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जाके चैलेंज हो सकती है तभी उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर, अब मैंने आपको पहले भी बोला, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो डीपीएसपीज हैं उसको, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, बट फिर भी आप ये देखो ना कि अगर वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे, अगर वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एस्पिरेशंस है, जो सिटीजन्स की एस्पिरेशन है, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे, तो एनी हाउ जब वो इलेक्शंस के दौरान वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें वोट देगा ही कौन। तो अगर आप फिर भी नहीं देखते हो और फिर भी सिर्फ जाति धर्म के नाम पे अगर आप वोट करोगे, हम वोट करेंगे, तो वो हमारी गलती है। बट अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के ये सब कुछ किया है कि ठीक है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो कोई बात नहीं, बट अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें अकाउंटेबल ठहराएंगे, राइट। तो ये एक बेसिक एक हम लोग बोल सकते हैं माइंडसेट था इस सब चीज़ों के पीछे। तो ये है 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली एक और डीपीएसपी ऐड किया गया था। देन कम्स 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 दैट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, वो हमने पहले देखा है, एंड मेक एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में असाइनमेंट दिया था कि आपको बताना है कि कौन सा डीपीएसपी है जो फंडामेंटल राइट बना है और कौन से आर्टिकल के अंडर बना है, एंड दैट वाज 21A एंड दैट वाज द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिकली। तो अब जो अमेंड किया था 86th अमेंडमेंट एक्ट में, उसमें क्या बोला गया था कि स्टेट इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब वो 6 ईयर्स का कर दिया था, पहले वो 14 ईयर्स तक का था, क्योंकि 6 to 14 ईयर्स एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना फंडामेंटल राइट बन चुका है, वो अब डीपीएसपी नहीं है। सो दैट वाज 86th अमेंडमेंट एक्ट। एंड उसके बाद आता है 97th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत रिसेंट हम मान सकते हैं, 2011 का। एडिड न्यू डीपीएसपी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट वाज आर्टिकल 43B, जो हमने पहले भी देखा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो तो हमने देखा ही था, पर्टिकुलरली वो गांधीयन आइडियोलॉजी में आता है, ये गांधीयन क्लासिफिकेशन में आ जाता है। अब ये हमने डिफरेंट अमेंडमेंट्स देख लिए। सबसे पहले हमने आर्टिकल्स कुछ डिस्कस किए थे, जो हमने कैटेगराइजेशन की थी, क्लासिफिकेशन की थी डीपीएसपीज की, उनके अंदर। फिर हमने उनके अंदर जो हमने डिफरेंट अमेंडमेंट्स देखी हैं। सबसे पहले हमने कौन सा अमेंडमेंट देखा? सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसमें 4 न्यू डीपीएसपीज इंक्लूड होते हैं। उसके बाद 44th होता है, जिसमें एक और इंक्लूड होता है। फिर 86 आता है 2002 में, उसमें एक और इंक्लूड होता है। इंक्लूड क्या होता है? उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया जाता है आर्टिकल 45 का, क्योंकि बेसिकली 6 से लेके 14 तक की जो एज है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना फंडामेंटल राइट बन जाता है अंडर आर्टिकल 21A। और जो अब ये 45 है, आर्टिकल 45 अंडर डीपीएसपी, इसमें ये बोला जाता है कि अप टू द एज ऑफ 6 जो एक वो चाइल्डहुड को, जो चिल्ड्रंस है उनको सब कुछ प्रोवाइड करना, वो डीपीएसपी में आ जाता है। देन आता है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जो आर्टिकल है वो इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो ये है अमेंडमेंट्स जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डीपीएसपीज इंक्लूड किए गए हैं। और देखो, ये अपने आप में दिखाता है कि डीपीएसपी डेड होते जस्ट बिकॉज वो नॉन एनफोर्सेबल है कोर्ट में, तो उसमें क्यों इतने अमेंडमेंट्स कर करके न्यू न्यू चीज़ें आती। और फिर भी हम लोग आज भी देखते हैं कि जो हम लोग बोलेंगे कि एक तरह से नेशन बिल्डिंग में जो जो एजेंडाज उठ के आते हैं, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, वो हमारा डीपीएसपी है, बट फिर भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेती है वो कुछ ग्राउंड मेकअप हो ताकि उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दैट इटसेल्फ शोज कि डीपीएसपी जो है वो उसके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट काम करती है, और अगर वो काम करती है सो दैट मीन्स कि उनकी इंपॉर्टेंस ज़रूर है, right? So now comes sanctions behind directive principles. So for this let's see there. So firstly, like मैंने ये ऐसे कैसा डायग्राम उठाया है, so it may happen कि आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखे। अगर नहीं दिखेगा so I request you कि आप प्लीज़ अपनी लक्ष्मीकांत की बुक उठाएं, उसमें ये है टेबल 9.1 पे। So this basically explains the distinction between fundamental rights and DPSP, and first डिफरेंस बिटवीन दैम इज दीज, लाइक फंडामेंटल राइट्स जो है दीज आर नेगेटिव, क्योंकि स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं, उनकी जो पावर है उसे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो वो पॉजिटिव कनोटेशन है, क्योंकि वो स्टेट को बोलते हैं आपको ये करना है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। फिर दीज आर जस्टिफाइबल, क्योंकि फंडामेंटल जस्टिफाइबल है, दैट इज दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन केस ऑफ वायलेशन, बट दीज आर नॉन जस्टिफाइबल, नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। एंड देन दे एम
they aim at establishing political democracy in country और they aim at establishing social and economic democracy। क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट की बात करें वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, और जब हमने डीपीएसपी देखा तो उसमें हमने कहीं ना कहीं यही देखा कि वो इकोनॉमिक और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की या उसकी डेमोक्रेटाइजेशन की ज़्यादा बात कर रहे हैं। देन कम्स जो फोर्थ पॉइंट है, दीज हैव फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सैंक्शन, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनकी लीगल सेक्शंस नहीं है, दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सेक्शन। पॉलिटिकल क्यों? वही जो मैंने इलेक्शंस वाली आपको अभी बात बताई। दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, और जबकि डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी की बात करते हैं, हेंस दे आर सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्ट। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेचर फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, क्योंकि फंडामेंटल राइट बाय डिफॉल्ट सिटीजन्स को मिल जाते हैं, बट डीपीएसपी के लिए दे रिक्वायर legislation for their implementation, they are not automatically enforced. The courts are bound to declare law violative of any of fundamental rights are unconstitutional, but यहाँ पे ऐसा नहीं है, right? तो ये है about the difference between fundamental rights and directive principle. But though directive principles are non-justifiable, the constitution makes it clear that these principles are fundamental in governance of country and it shall be duty of state to apply these principles in making laws। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब आप बताओ कौन से आर्टिकल में था? शुरू के आर्टिकल्स में ही था। आर्टिकल, you have to tell it, so please write it down in the comment box, राइट? जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिकॉल एक ही कौन सा आर्टिकल था जिसमें हमने ये पर्टिकुलर लाइंस पढ़ी थी, बिकॉज मैं आपको इसीलिए साथ के साथ बेरेक्ट करवाती हूँ ताकि आप वो सोच सको। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, एंड एनी वे आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अदरवाइज। So that was article 37, right? So yeah, so they were made non-justifiable। अब देखो पॉइंट आता है कि उन्हें नॉन जस्टिफाइबल रखा ही क्यों गया जब वो इतने नॉवल प्रिंसिपल्स लग रहे थे, क्योंकि कंट्री डिडंट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, एंड वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन कंट्री, बिकॉज आज भी हम लोग सिविल कोड के ऊपर आ नहीं पा रहे हैं कि वो होगा क्या, तो उस समय कैसे वो चीज़ें डिस्कस होती। तो इसलिए उन्हें लगा कि ऑल्दो दीज आर रिक्वायरमेंट बट स्टिल लेट्स पुट देम ऑन द डीपीएसपी फ्रंट इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट, ताकि उन चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेसिवली थिंकिंग हो सके, और लेटर ऑन जब वो सोसाइटी एक स्टेज पे पहुंचे कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं, तब जो गवर्नमेंट है उसे इंप्लीमेंट कर देगी। सो दीज आर द सैंक्शंस दैट आर बिहाइंड द डीपीएसपीज। सो देन कम्स क्रिटिसिज्म। देखो अभी हमने सब कुछ अच्छा देख लिया, अब क्रिटिसिज्म्स के बिना कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्रिटिसिज्म। सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो बहुत नॉर्मल बनता है, नो लीगल फोर्स, एंड देन इलॉजिकल अरेंज्ड। वो तो हम मान सकते हैं, राइट, कि जो पूरे फंडामेंटल राइट्स है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, अब जो सॉरी मैं फंडामेंटल राइट्स बोलो, डीपीएसपीज, जो पूरे डीपीएसपीज हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज्ड नहीं है। अरेंज्ड क्यों नहीं है? अब देखो जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, उसे भी तो हमने कैटेगराइज करा है ना, राइट टू इक्वालिटी, और उसके अंदर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो यहाँ पे भी तो ऐसा कर सकते थे, सोशलिस्ट एजेंडा और उसके नीचे सोशलिज्म वाले, और जो दूसरे थे गांधीयन, उसके नीचे गांधीयन वाले, तो वो एक बहुत सॉर्टेड फे में होता, बट अभी इलॉजिकली अरेंज्ड है। देन कंजर्वेटिव्स क्या है? अकॉर्डिंग टू सर एवर जेनिंग, दे आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड, कि उस समय की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली है। बट एनी हाउ अगर उसमें अमेंडमेंट करके आज भी हम देखो इम्प्लीमेंट, तो हमसे आज भी वो चीज़ें पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं। तो बट या दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। देन कम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कि संथनम पॉइंटेड दैट दे लीड टू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, प्रेसिडेंट एंड पीएम, गवर्नर एंड सीएम। और सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देम, इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस कैन डिसमिस स्टेट। क्योंकि आपको पता है अभी हमें पता है मणिपुर में भी प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो जो प्रेसिडेंट रूल लगता है या गवर्नर रूल लगता है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अगर उसके पीछे हम लोगों को पता है कि बहुत सारे उसके पीछे जो मेन कारण रहता है वो ये भी रहता है कि अगर उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट ने बोला, सेंटर ने बोला, अगर वो पॉलिसीज ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है स्टेट, तो उस केस में भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ऐसा देखा जाता है कि वो वर्क ढंग से नहीं कर पा रही है, तो इसलिए उसे सस्पेंड करके वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट रूल है, वो लग जाता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सपोज जैसे वो बोला ना कि
जो प्रेसिडेंट है, पीएम है, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रही है, तो वो इसी तरह से अराइज कर रही है कि अगर सपोज एक ने रूल बनाया दूसरे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट इशू. So these are the four basic criticism when it comes to DPSPs. But anyhow अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है जिससे कि आप इजीली समझ सकते हो ये क्रिटिसिज्म कितने वैलिड हैं. Then come utility. Even after those criticism, they are vital for governance. The constitution itself declares that they are fundamental to governance of country, and directive principles although confer no legal right but are significant and useful in following ways. और वो following ways क्या है? They are like instrument of instructions, serve as useful beacon light to the court and form dominating background to all state action, legislative or executive, and also guide to court in some respect. जो कि हमने पहले भी देखा कि जो कोर्ट है वो यहाँ से जरूर रेफरेंस ले सकती है जब वो किसी भी चीज को इंटरप्रिटेट कर रही है डीपीएसपी से. दे ऑल्सो plays roles such as, let's see, and that's facilitate stability and continuity in domestic and foreign policies in political, economic and social spheres. क्योंकि अगर डीपीएसपी के हिसाब से अगर सारी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम अप होनी है तो वो डेफिनेटली गवर्नेंस को एक पैरेलल वे में रखेगी. तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी चेंज होगी तब भी वो डाउन द लाइन उन्हीं चीजों पे काम करेंगी. अब आप हम लोग देखते हैं कि पॉलिसीज के नाम जरूर चेंज हो सकता है बट एनी हाउ पॉलिसीज तो सेम उसी लाइंस पे चलती हैं. सो दे आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, क्रिएट्स फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर फुल एंड प्रॉपर इंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एनेबल ऑपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि अगर वो इस हिसाब से नहीं करेंगे तो वो उसके लिए एक इशू उठा सकते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन हो तब भी और एनी हाउ वैसे भी. तो सर्व एज क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, सर्व एज कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, क्योंकि ये बता रहा है कि इस तरीके से काम होना चाहिए. सो that shows the utility of DPSPs, right? Then comes the Champakam Dorai Rajan case 1951 in which Supreme Court ruled that in case of conflict between the fundamental right and DPSP तो fundamental right जो है वही prevail करेंगे. उस केस में अगर DPSP और fundamental rights एक दूसरे के contravention में आ जाते हैं तो उन्होंने बोला fundamental right sacrosanct है तो इसका मतलब fundamental rights को ही uphold किया जाएगा. ये बोला गया था 1951 के केस में. बट उसके बाद गोलकनाथ केस आता है 1967 में. उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ फंडामेंटल राइट विच आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर. सेम उसी लाइंस के ऊपर आ गया. फिर पार्लियामेंट क्या करती है, क्योंकि जो हमेशा से पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है उसके बीच में टसल चलता है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट इलेक्टेड 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971. और उसमें क्या बोला जाता है, 25th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 31C हैविंग 2 प्रोविजंस. और वो 2 प्रोविजंस क्या थे, अब पहले ये याद करो 31C या 31 में क्या आएगा. देन नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी शैल बी वॉइड ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट. तो वो क्या बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ मेकअप करती है जो डीपीएसपी के इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है और पर वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में है तो उसे किसी भी हाल में नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. और फिर दूसरा एक और जो इसमें इंसर्ट करते हैं जो और भी मजेदार है कि नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन लॉ. कि जो भी ऐसा हम लॉ लेके आएंगे उसे आप कोर्ट में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते. दैट मीन जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू की उससे पावर छीन ली जाती है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट. बट डेफिनेटली कोर्ट भी ऐसे नहीं मानेगा. तो इन केशवानंद भारती केस 1973 ही सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स सेकंड प्रोविजन टू बी वॉइड. फर्स्ट प्रोविजन को उन्होंने अपहेल्ड किया कि हाँ बिल्कुल सही है कि अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डीपीएसपी के किसी प्रोविजन में और वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में आ रहा है तो इट विल बी ओके कि चलो कोई बात नहीं उस चीज को चलने देते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आप हमारे से जुडिशियल रिव्यू का हमारे से जो पावर है वो आप छीन लोगे. हम डिसाइड करेंगे कि वो सही है या नहीं है. सो प्रोविजन एज वॉइड ऑन ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर वो आता है. सो दैट इज द टसल में क्या हुआ, सबसे पहले ये अपहोल्ड किया गया जुडिशरी के द्वारा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेक्रोसेंट है और डीपीएसपी अगर इंप्लीमेंट कर रहे हो और वो लॉ
अगर कॉन्ट्रावेंशन में है फंडामेंटल राइट के, तो डीपीएसपी का जो आपने लॉ बनाया उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। फिर वो अमेंडमेंट लेके आते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो वो वॉइड नहीं होगा, और दूसरी बात उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते आप कोर्ट में जाके। फिर जुडिशरी बोलती है केशवानंद भारती केस में बिल्कुल भी नहीं, आप हमारा जुडिशियल रिव्यू का हमारे से पावर नहीं ले सकते। बट हाँ ये सही है कि अगर आप डीपीएसपी के लिए कुछ कर रहे हो, कि डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए आप कोई भी लॉ लेके आ रहे हो और वो फंडामेंटल राइट के साथ अगर कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उस केस में हम उस चीज को अपहेल्ड कर देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे जुडिशियल रिव्यू ही हमारी पावर छीन लो। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। और बेसिकली ये सब टसल क्यों चला था? जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट था, बट उसे फिर वो लीगल राइट बना दिया गया था, राइट, जो कि आज भी है। Thus the present position is that कि parliament can amend fundamental right for implementing DPSP so long as amendment does not damage or destroy basic structure of constitution। कि अगर आप चाहो तो बिल्कुल आप DPSP को implement करने के लिए आप amendment कर सकते हो, आप law मेकअप कर सकते हो, और अगर वो fundamental right के साथ contravention में है तब भी कोई बात नहीं, अगर वो basic structure जो है हमारे constitution का उसे कहीं ना कहीं harm नहीं कर रहा है। अब देखो जब भी हम पॉलिटी डिस्कस करते हैं हम सबसे इजीली ये वाली डॉक्ट्रिन यूज करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बट जो जुडिशरी है वो इस जो डॉक्ट्रिन है इसको बहुत कॉमनली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हर चीज को, कोई भी चीज को आप बहुत कॉमनली यूज करोगे वो स्पेशल नहीं, वो कॉमन बन जाएगी। तो इसलिए इसे बहुत स्पेशल केसेस पे ही ऑल्दो यूज किया जाता है। बट हाँ प्रेजेंट पोजिशन ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल लेके आती है, कोई लॉ बनाती है और उस केस में डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करती है, जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रावेंशन में होगा, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खराब नहीं कर रहा, उसके साथ वॉयलेटिव नहीं है, तो उस केस में उसे अपहेल्ड किया जाएगा, अदरवाइज उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डीपीएसपी। सो नाउ आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड गाइज डू रिमेंबर, जो कि मैं पीवाईक्यू सेशंस में भी बोलती हूँ कि अगर हम एनालिसिस करें तो डीपीएसपी में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। सो इट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम यू कि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डीपीएसपी का जरूर होना चाहिए। सो लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन एट द एंड। तो हमने सबसे पहले देखा था, ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में, बॉरोड फ्रॉम इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन फीचर्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, सोशलिस्ट, लिबरलिज्म, लिबरल या इंटेलेक्चुअल और गांधीयन। और इसके बाद हमने देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली जो 4 न्यू डीपीएसपीज इंक्लूड किए गए, 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली 1 न्यू डीपीएसपी जो किया गया। फिर 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट है, जो डीपीएसपी है आर्टिकल 45 के अंडर, उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया था, क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे इंप्लीमेंट कर दिया था अंडर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, जिसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। और फिर हमने देखा कि जो ये पावर्स आती है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे कैसे ये वर्क होता है। फिर हमने इसकी क्रिटिसिज्म देखे, फिर हमने इसकी यूटिलिटी देखी, और फिर हमने लास्ट में कुछ केसेस डिस्कस किए जिसमें हमने देखा कि प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के कॉन्ट्रावेंशन में है, मतलब अगर कोई डीपीएसपी को लेके गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया और वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में है, तो अगर वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वॉयलेट नहीं करता तो जुडिशरी उसे अपहेल्ड करेगी, अदरवाइज उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीपीएसपीज, दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. So I hope you truly understand each factor of this particular chapter. If you have any doubt, you can always let me know by writing it down in the comment box below. And if you like the video, do hit the like button and also subscribe to the channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. And along with that, guys, I always conduct a master class in which I'll let you know like how you can easify your UPSC preparation. And if you want to enroll for that, just register for it right now at free of cost by clicking on the link given in description below. I will love to see you over there. So that was it for this particular video. I will see you all in the next video with the next topic or with the next chapter. Till then, bye bye guys.